Hello to all the viewers out there. I warmly welcome you for tuning into Mavi Coders. Today we are going to start our new lecture series on YouTube that is on the topic operating system. In this whole journey, I'll try to cover each and every concept of operating system in very much depth. So without any further delay, let us commence our session, that is Introduction to Operating System and its Goals. Let us go through the first topic, that is operating system. Operating system is a system software. It acts as an interface between the user and the computer. Each computer has operating system installed in it. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है और ये एज एन इंटरफेस एक्ट करता है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर. Computers here does not only refer to laptops, it refers to the various forms of the computer. It could be laptop, it could be mobile, it could be tablet or any other form of computer. और मोर स्पेसिफिकली आई वुड से कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर. बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो ओएस है वो यूज़र को कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प आउट करता है. जब हम कभी भी कंप्यूटर पे कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं या फिर कुछ ना कुछ फाइल्स वगैरह ओपन कर रहे होते हैं या सपोज़ कर लीजिए म्यूजिक सुन रहे हैं, देन अल्टीमेटली आई वुड से कि हम इंटरेक्ट तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को ही कर रहे होते हैं ना, एंड उस हार्डवेयर के साथ हमारी इंटरेक्शन करवाता है ओएस एज एन इंटरफेस एक्ट करके. बिकॉज अगर हमने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है या फिर आई वुड से कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए किसी ना किसी रिसोर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, एंड दीज रिसोर्सेज आर नथिंग बट द हार्डवेयर ओनली. दैट इज़ इट कुड बी मेमोरी, इट कुड बी सीपीयू, प्रोसेसर एट्सेट्रा. एंड इन सब हार्डवेयर्स के साथ हमारी इंटरेक्शन ओएस करवाता है मोर एफिशिएंटली एंड मोर कन्वीनियंटली. Operating system acts as a platform over which other application softwares are installed. As it acts as a platform, and hence we can say that it provides the runtime environment for the execution of the certain programs. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है जिसके ऊपर अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया जाता है, और वी कैन से कि ये रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन प्रोग्राम्स. अपनी सी लैंग्वेज की सीरीज़ में मैंने बताया था कि अगर कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना है तो उसके लिए उसको एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए होता है. वो रन टाइम एनवायरनमेंट और कुछ नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म ही होता है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म, जिससे कि जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जब उन्होंने एग्जीक्यूट होना है तो उनको एक रन टाइम एनवायरनमेंट मिल सके. एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज़, एंड्रॉयड, मैकिंटोश एट्सेट्रा. द मोस्ट कॉमन अमॉन्ग ऑल ऑफ अस इज़ विंडोज़ एज इट हैज़ एक्वायर्ड इंडस्ट्री द मोस्ट because of its conveniency which it provide to the user. Even the naive users are able to work on computers because of the conveniency provided by the Windows operating system. Now, as we have discussed the definition part of the operating system, I mean what operating system actually is, now the question arises in our mind that why OS is necessary. Means that ki can't we directly access the hardware without the involvement of the operating system as an intermediary? Because I just told ki operating system acts as an interface between the user and the computer, और मोर स्पेसिफिकली आई वुड से कि बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर. तो क्या ऐसे चांसेस नहीं है या क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि हम बिना ओएस की हेल्प से
हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकें? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ येस. Of course, we can directly access the hardware without the involvement of operating system. However, that's not going to be the efficient, or you may say the convenient manner to access the hardware of your computer. Now let us understand that why this won't be an efficient and convenient method to access the hardware of your computer without the involvement or without making the use of operating system as an interface. See, as we know that computer is very complex electronic device. Also, it comprises of many parts, components, or ultimately I would say कि a computer has a very complicated architecture. And अगर हमने इस कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है तो हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. आई मीन कि इसके आर्किटेक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, इसके जो पार्ट्स हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, विच आई गेस इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल और एनी नेव यूज़र. And we should have command over the machine language, because it is the machine language only by the help of which we can directly interact with any hardware of any computer. कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में इतनी इन डेप्थ नॉलेज होना काफ़ी इजी टास्क नहीं है. इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट अकॉर्डिंग टू मी. हैंस देयरफॉर हमारे लिए बिना OS के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना काफ़ी टफ हो जाएगा. Now for more clarity, let us understand this with the help of an example. Suppose you want to work over any software, say over MS Word. So in this modern era of computer, what we guys do is that we simply click over the MS Word icon, then we write in it, and by just single click we choose the font styles, colors, etc. according to our need or choice. And after we are done with our writing portion on the Word document, or I would say that Word page, we simply save it by clicking on save or save as option. Now think, if there was no OS involved in this process, then the scenario would have been bit different and difficult too. That is, for doing each smaller to smaller task, or I would say for doing each minute task, हमें मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखने पड़ते. जैसे मैंने अभी MS वर्ड का एग्जांपल दिया था कि अगर हमने MS वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करना था, उसके लिए भी हमें कोड करना पड़ता अलग से. फिर उसमें अगर हमने कुछ टाइप करना है तो उसके लिए भी हमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती, उसके लिए भी हमें कोड करना पड़ता. फिर लिखते टाइम भी अगर हमने कोई उसमें चेंजेस करने हैं या उसकी कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए भी हमें अलग से इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते. कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में हमें अलग से कोड करना पड़ता उसके लिए भी. एंड अल्टीमेटली जो कुछ भी हमने MS वर्ड पेज पे लिखा है उसको सेव करना है, तो उसको सेव करने के लिए भी हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस खुद से देने पड़ेंगे, हमें खुद से मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना पड़ेगा. अल्टीमेटली जब हमने प्रोग्राम को अपने को सेव करना है तो उसके लिए भी हमें कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसको एक्सेस करना पड़ेगा एज अ रिसोर्स. तो उसके लिए भी हमें अलग से मशीन लैंग्वेज में खुद कोड करना पड़ेगा अगर हमने OS को यूज़ में नहीं लिया है. हैंस वी कैन कंक्लूड कि कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए ये सब करना. एंड ऑल्सो मैंने अपनी C लैंग्वेज सीरीज़ में बताया था कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो आर्किटेक्चर डिपेंडेंट होती है. तो मतलब मान के चलिए अगर आपने एक मशीन के लिए कोड लिख भी दिया तो दूसरी मशीन के लिए वो कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि मशीन लैंग्वेज आर्किटेक्चर डिपेंडेंट होती है. दूसरी मशीन के लिए आपको फिर से मत्था मारना पड़ेगा, फिर से आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत आपने पहली मशीन के लिए कोड लिखने में करी थी. Hence we can conclude that without OS, or I mean without operating system, the things are getting more and more complex. Means you have to explicitly write the code for each and every minute task that you want to perform on your computer.
or you want that particular task get done by your computer. Means you have to yourself write the large number of lines of code in order to get your work done by the computer. अगर ऐसा केस होता, I mean कि if we had to write the code manually, then I guess nobody would ultimately wish to work ऑन कंप्यूटर्स. जाहिर सी बात है, अगर इतनी मशक्क़त करनी पड़ेगी तो कोई भी चाहेगा नहीं कि कंप्यूटर पे वो काम करे. Hence, to avoid all such complexities, we have a special set of programs that is nothing but operating system. अगर हम OS को इस्तेमाल में नहीं लेंगे तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं. हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, हमें खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, हमें खुद ही रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा. लेकिन जैसे ही OS की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, चीज़ें हमारे लिए और आसान हो जाती हैं. MS वर्ड का मैंने एग्जांपल लिया था. MS वर्ड या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर पे जितने टास्क परफॉर्म करने हैं यूज़र ने, वो सब स्मूथली हो जाएं, वो सब स्मूथली रन हो जाएं विदाउट कॉजिंग एनी डिफ़िकल्टीज़. यही मेन टारगेट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वॉल्व करवाने का. जितनी भी चीज़ें बैकएंड पे या जितनी भी चीज़ें इंटरनली प्रोसेस हो रही होती हैं, उन सब की टेक केयर ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ता. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए ये कन्वीनियंसी प्रोवाइड करता है कि वो चीज़ों को खुद हैंडल करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ रिसोर्स मैनेजर. It manages both software and hardware without introducing any biasing. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर भी एक्ट करता है, which manages the software as well as the hardware part of your computer. मतलब जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ एनी सर्टेन प्रोग्राम, उन सब को मैनेज करने का जो काम है वो OS करता है. मतलब कब एक सर्टेन प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट करवाना है, कब डी एलोकेट करवाना है, ये सारी जिम्मेदारी OS की होती है. हमें मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ेगा. मीन्स OS वुड टेक केयर ऑफ दैट. अब क्वेश्चन है कि प्रोसेस क्या होती है. प्रोसेस कुछ नहीं होती. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग स्टेट में होता है या फिर जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है, तो उस प्रोग्राम को हम प्रोसेस कह देते हैं. और आई वुड से कि व्हेन द प्रोग्राम इज इन द एक्टिव स्टेट वी रेफर दैट प्रोग्राम एज अ प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, कोई सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर पे या मोबाइल्स पे इंस्टॉल्ड है, तो अगर हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो समझ लो वो एक प्रोग्राम है. जैसे ही हमने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मतलब उसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, तो हम उन प्रोग्राम्स को कहेंगे कि अब प्रोसेस है. अब मतलब अब प्रोसेसिंग हो रही है उन प्रोग्राम्स की. फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ रिसोर्स मैनेजर, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एन इंस्टेंस, आप ये एज्यूम कर लो कि आप सेम टाइम पे अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में म्यूज़िक भी प्ले कर रहे हो, ब्राउजिंग भी कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप प्रिंट भी करवाना है. एंड हैंस वी कैन से कि इन तीनों प्रोसेसेस को अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए होंगे एट द सेम टाइम. एंड ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किन्हीं दो प्रोसेसेस को सेम रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़े. And it would be very difficult for us to synchronize these things all together manually. मतलब इन सारी चीज़ों को मैनुअली सिंक्रोनाइज करवाना या मैनुअली हैंडल करना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कब किसी प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट करवाना है, कब डी एलोकेट करवाना है, या फिर क्लैशेस जब होंगे, जब सेम प्रोसेस को अलग अलग प्रोसेसेस को सेम रिसोर्सेज चाहिए होगा तो उनको कैसे डील करना है. हमारे लिए इन सब चीज़ों को, इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. वहीं OS इसको आसानी के साथ मैनेज कर लेगा. और आई वुड से कि OS प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सीमलेस और द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस विच आर हैपनिंग आउट इन आवर कंप्यूटर. OS manages all these in an effective manner.
For the better understanding, let us go through the abstract view or the basic architecture. ये एक बेसिक आर्किटेक्चर मैंने बनाया है. सबसे नीचे है हार्डवेयर में आपका आ गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, CPU, मेमोरीज, एंड फिर इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में आपके गेम्स हो गए, मीडिया प्लेयर्स हो गए, या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, जो भी आपके सिस्टम पे आपने इंस्टॉल किया है एज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फिर लास्ट में जो लेयर बचती है दैट इज़ द लेयर ऑफ यूज़र्स जो हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अल्टीमेटली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है. एंड हेंस वी कैन से कि जो यूज़र है उसकी इंटरेक्शन हार्डवेयर के साथ हो जाती है इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि जैसे मैंने अपने लैपटॉप में कोई मूवी प्ले करनी है, एंड एज्यूम दैट कि आई हैव इंस्टॉल्ड एनी मीडिया प्लेयर एज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इन माई लैपटॉप. In my case, I have installed, say, Pot Player. Pot Player is a media player. So now let us see कि how this is gonna work. मैं as a user Pot Player पे क्लिक करूँगा एंड मूवी प्ले करवाना चाहूँगा. Pot Player being an application program will instruct the OS to have access over certain hardware or I would say कि certain resources जिनकी उसको ज़रूरत पड़ सकती है during the execution. Hence जितने भी number of resources required होते हैं किसी भी process को एग्जीक्यूट होने के लिए, उन सब resources को अवेल करवाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. अभी जो एग्ज़ाम्पल लिया था मैंने पॉड प्लेयर वाला, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें सर्टेन नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज चाहिए होंगे जब उसको एग्जीक्यूट होना है मीडिया प्लेयर को, या जब भी कोई सॉन्ग या कोई भी म्यूज़िक या कोई भी वीडियो जब भी प्ले करनी है तो उसके प्ले होने के लिए सर्टेन नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मेरे को वो वाले रिसोर्सेज चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम वही रिसोर्सेज अवेल करवा के देगा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को ताकि वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाएँ. फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जीक्यूट होने के लिए CPU चाहिए होगा, GPU चाहिए होगा, RAM चाहिए होगा, बैटरी, नेटवर्क, ऑडियो, हार्डवेयर एक्सेट्रा. नाउ लेट अस सी देयर यूज़ की मतलब किस रिसोर्स की क्या इम्पोर्टेंस है. पहला है CPU will be responsible for decoding the video file and it will also handle the playback process. जो भी playback process होगी या फिर वीडियो को डिकोड करना होगा उसके लिए CPU रिस्पॉन्सिबल होगा. सेकेंड, GPU will assist in rendering and displaying the video on the screen, thus takes some load off the screen of the CPU. ऑफ द CPU आएगा, मतलब GPU असिस्ट करेगा इन रेंडरिंग और आई वुड से कि डिस्प्लेइंग द वीडियो ऑन द स्क्रीन. सिमिलरली हमें मालूम है कि अगर किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है तो उसको रैम में आना ही पड़ेगा. एंड SSD और हार्ड डिस्क में तो वो मीडिया प्लेयर या फिर वो वीडियो स्टोर होगी, है ना, तो वहाँ से उसको रीड किया जाएगा, फिर उसको लोड किया जाएगा रैम के अंदर. ऑल्सो ऑडियो हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी फॉर रेंडरिंग द ऑडियो आउटपुट. एंड अगर तो वीडियो ऑनलाइन स्ट्रीम हो रही है ना, इफ़ द वीडियो इज़ बीइंग स्ट्रीम्ड फ्रॉम द इंटरनेट देन द नेटवर्क रिसोर्सेज आर यूटिलाइज. अगर वीडियो ऑनलाइन स्ट्रीम हो रही है तो उसके लिए नेटवर्क रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे मीडिया प्लेयर को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने के लिए. हैंस इन सभी रिसोर्सेज को अवेल करवाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम. अब सोचिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो मैन्युअली इतने सारे रिसोर्सेज को हम कैसे मैनेज कर पाते. नाउ बिफोर साइनिंग ऑफ लेट मी क्विकली समराइज, लेट अस क्विकली रिकॉल वॉट एवर वी हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर.
We started with introduction to the OS. We discussed what an operating system is and what actually an operating system does. We also discussed that why there is need of operating system, and we also went through the basic structure of operating system. We discussed that abstract view of operating system. So with this, today's lecture has come to an end. I look forward to seeing you in the next one. And in the meantime, please continue revising and learning. Thank you for tuning into Mavi Coders.